Good morning, everyone. Today we will study the story of William Shakespeare. It is chapter 10, class 7th ICSE board. So let us start. In the pleasant town of Stratford-on-Avon in Warwickshire, England, in the 16th century, there might have been seen upon a sunny morning a bright-eyed boy of 9 or 10 making his way to the grammar school. The boy's name was William Shakespeare. So we can see that this child is William Shakespeare, who is going to a grammar school. And here we can understand that he belonged to Stratford on Avon in Warwickshire, England. And this event is फ्रॉम 16th सेंचुरी. हम क्या देखते हैं कि विलियम शेक्सपियर एक बॉय है. ही इज अ ब्राइट आइड बॉय मीन्स ही इज वेरी इंटेलिजेंट बॉय. Bright eyed means very intelligent, and when he was 9 or 10 years old he started going to grammar school. Grammar school attend करना start किया इन्होंने. This means this shows his intelligence, so he is keen about learning. उनको लर्निंग में इंटरेस्ट है and he loved to go grammar school. William's father was a well-to-do citizen of Stratford and his father was believed to be a well-known citizen. He was a fine person. William Shakespeare के father एक citizen है Stratford में, and the boy had the best education that could be given him in the town. And William Shakespeare was getting best education that could be given to him. उस टाउन में जो सबसे अच्छा ग्रामर स्कूल था वहां वो जाकर के एजुकेशन अपनी अटेन कर रहे थे. Strange to say, we do not know much for certain about Shakespeare's early life, but there is no proof or there is no written evidence. हमें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है कि शेक्सपियर की अर्ली लाइफ में उन्होंने क्या किया, क्या हुआ होगा उनके अर्ली लाइफ स्टेजेस में. इसका हमारे पास कोई मेंशन्ड या रिटन प्रूफ नहीं है. Some accounts tell us that after he left school he became a lawyer's clerk. किसी जगह पे ऐसा मेंशन है कि वो स्कूल अटेंड जब कर चुके थे, फिनिश कर चुके थे, देन ही बिकेम अ लॉयर्स क्लर्क. किसी लॉयर के यहाँ वो क्लर्क की तरह वर्क किया उन्होंने. Others that he was a school master. कुछ का कहना है कि वो एक स्कूल मास्टर बने. Again, we are told that he was apprenticed to a butcher. और कुछ का ये भी मानना है कि वो किसी बुचर के यहाँ काम किया उन्होंने. And yet again that he was a printer. We do know, however, that he married Annie Hathaway, the daughter of a small farmer who lived in the parish of Stratford. और हमें इस चीज का प्रूफ है हमारे पास, रिटन प्रूफ हमारे पास इस चीज का एविडेंस है दैट ही मैरिड एनी हैथवे. सो उनकी वाइफ का नाम क्या है? एनी हैथवे. एंड शी वॉज अ डॉटर ऑफ स्मॉल फार्मर. वो एक किसी फार्मर की डॉटर थी. हु लिव्ड इन द पैरिश ऑफ स्ट्रैटफोर्ड, और स्ट्रैटफोर्ड में ही वो भी रहती थी. Annie Hathaway's quaint thatched house and flowery garden are still to be seen there. Annie Hathaway का quaint thatched house. Quaint means some pleasant but very old. सुंदर सा पुराना सा thatched house. Thatched का मतलब made of straw और dry grass से बना हुआ, जिसका रूफ, ऐसा घर जिसका रूफ ड्राई ग्रास या स्ट्रॉ से बना हुआ था. सो दैट हाउस कुड बी सीन राइट नाउ ऑल्सो. अभी भी उनका ये घर, हम वहां जाएं तो हमें मिलेगा. एंड फ्लावरी गार्डन आर स्टिल टू बी सीन देयर. अभी भी उनका हाउस और गार्डन हमें वहां देखने को मिल सकता है. While he was still a young man,
Shakespeare left his wife and family in Warwickshire and left to London to try his fortune there. तो जब शेक्सपियर की एज बहुत कम थी, देन ही लेफ्ट हिज वाइफ एंड फैमिली, वो अपनी वाइफ अपनी फैमिली को छोड़कर लंदन चले गए टू ट्राई हिज फॉर्च्यून, अपना लक ट्राई करने के लिए, टू अर्न. ओके, there is a story which says that having been caught killing deer in a nobleman's park, he was punished. कुछ का ये कहना है कि he was found killing a deer. एक डियर वो किल करते हुए पकड़े गए किसी नोबल मैन के पार्क में. तो he was punished, उसके लिए उनको पनिशमेंट मिली. He took his revenge by writing some very bitter verses. और इसकी पनिशमेंट, इसका जो उनको पनिशमेंट मिला था, इसके रिवेंज में, इसका बदला लेने के लिए उन्होंने बहुत बुरे से वर्सेस लिखे, बुरे से कुछ शब्द लिखे उसने इस नोबल मैन के बारे में. एंड देन टू escape harsher punishment he fled from Stratford to London. और जब उसने, विलियम शेक्सपियर ने इस नोबल पर्सन के बारे में उल्टे सीधे कुछ वर्सेस लिख दिए, कुछ लाइंस लिख दी, तो उसके पनिशमेंट से बचने के लिए ही फ्लेड अवे, वो वहां से भी भाग गए और फ्रॉम स्ट्रैटफोर्ड एंड वेंट टू लंदन, स्ट्रैटफोर्ड से वो लंदन चले गए. कुछ का ये कहना है कि वो इस वजह से लंदन गए, किसी का ये कहना है कि अपना लक ट्राई करने के लिए वो लंदन गए. सो देयर आर स्टोरीज बिहाइंड, और हमें कुछ भी क्लियर एविडेंस शेक्सपियर की लाइफ के बारे में क्लियरली नहीं पता है. हम वही बातें कर रहे हैं जो लोगों ने एक दूसरे से कही सुनी बातें हैं, हमारे पास इसका कोई एविडेंस नहीं है. It may be, however, that Shakespeare, while he was still a young man, had talked with some of the actors who visited Stratford from time to time. कुछ का ये भी कहना है कि शेक्सपियर यंग एक्टर्स मैन से मिलते रहे होंगे. ओके, हु ऑल विजिटेड स्ट्रैटफोर्ड, जो भी स्ट्रैटफोर्ड में आते रहे होंगे एक्टर्स, शेक्सपियर उनसे मिलते रहे होंगे. Perhaps he felt that he could act himself, और वो सोचते होंगे कि वो खुद भी एक्ट कर सकते हैं किसी प्ले में. And even write plays for the theatre, and he thought himself that he could write plays. वो plays थिएटर के लिए लिखते थे जिसमें वो खुद भी एक्ट कर पाए, ऐसा वो सोचते होंगे. He may have grown restless in his native town and wished to find in London work that suited him. और वो अपने नेटिव टाउन में, स्ट्रैटफोर्ड में रेस्टलेस हो गए होंगे, बेचैन हो गए होंगे, और वो क्या विश करते होंगे, मे बी वो ऐसा विश करते होंगे कि लंदन में जाकर के ही कुड डू सम वर्क विच माइट सूट हिम, जो उनके लिए सूटेबल हो, जिससे उनकी अर्निंग बेटर हो सके. सो दीज ऑल आर द सेइंग्स. लोगों का ऐसा मानना है, जैसे कि लोगों का जैसा कही सुनी बातें, हम वही चीजें अभी तक पढ़ रहे हैं स्टोरी में. नेक्स्ट इज, once in London, Shakespeare seems to have soon found what he wanted, since we are told that he became an actor at the Globe Theatre. और क्या लोगों का मानना, और हमने क्या बातें सुनी हुई हैं उनके बारे में, that once in London, एक बार लंदन में, Shakespeare seems to have found what he wanted. शेक्सपियर को जो वो चाहते थे वो उनको मिल गया. Since we are told that he became an actor at the Globe Theatre, और वो Globe Theatre में, this is the name of a theatre, वहां पे वो एक एक्टर बन गए. We do not know, however, whether he was ever a success as an actor. और हमें इस बात के भी बारे में नहीं पता कि वो कभी भी एज एक्टर, किसी एक्टर की तरह वो सक्सेसफुल हो पाए अपनी लाइफ में. Before long, he began to employ his time by preparing the plays of other authors for acting. और वो हमेशा से राइटिंग वर्क हमने उनका देखा है, तो वो राइटिंग प्रिपेयर करते रहे जिसमें एक्टर्स को वो हायर करते थे अपने प्ले में इनैक्ट करने के लिए. एंड देन ही टुक टू राइटिंग प्लेज ऑफ हिज ओन, और अपने प्लेज वो धीरे धीरे लिखना शुरू कर दिए. These plays are among the best that the world has known. और ये plays हम आज भी उनका देखते हैं. Shakespeare is very well known for his plays, and he wrote plays for the theatre. Theatre के लिए, enactment के लिए, stage shows के लिए वो plays लिखने के लिए बहुत ही ज़्यादा famous है. You can even hear his name from
any person who knows literature are still read, his plays are still read, अभी भी उनके plays हम पढ़ते हैं, and acted in nearly every country and in nearly every language, और इनके plays हम अभी भी अपने स्कूल की बुक्स में पढ़ते हैं, और हर लैंग्वेज में, ऑलमोस्ट हर लैंग्वेज में इनके plays अवेलेबल हैं. शेक्सपियर्स वर्क एट द ग्लोब थिएटर बॉट हिम वेल्थ, और ग्लोब थिएटर में जब उनका वर्क उन्होंने स्टार्ट कर दिया करना एज अ एक्टर और थ्रू हिज प्लेज, अपने प्लेज की वजह से या वहाँ एक्टिंग करने की वजह से, उसकी वजह से वी कैन सी ही अर्नड वेल्थ, वो पैसे कमाए उन्होंने. ही बिकेम द ओनर ऑफ थिएटर्स इन लंडन, और वो कई थिएटर्स के ओनर भी बन गए लंदन में. एंड आफ्टर अ टाइम ही वॉज एबल टू बाय न्यू प्लेस देन द बेस्ट हाउस इन स्ट्रैटफोर्ड, और कुछ टाइम के बाद वो नया प्लेस एक ओन कर पाए, बाय कर पाए. देन अ बेस्ट हाउस इन स्ट्रैटफोर्ड, और बहुत सुंदर सा घर भी उन्होंने बाय किया स्ट्रैटफोर्ड में. बिसाइड्स ही बॉट अदर हाउसेस एंड लैंड इन एंड अबाउट हिज नेटिव लैंड, और अपने नेटिव लैंड में और उसके आसपास उन्होंने कई लैंड या हाउसेस भी बाय किए हैं. So Shakespeare came back to Warwickshire and took his old father and mother to live with him and his family. Then after earning wealth, पैसे कमाने के बाद, he returned back to Warwickshire, वो फिर से अपने native land में आ गए, and he took his father, old mother, दोनों को लेके वो अपनी फैमिली के साथ में रहने लगे. No doubt he lived the life of a contented, और हमें इस चीज का भी पता है कि वो अपनी लाइफ में कंटेंटेड थे, हर चीज से सेटिस्फाइड थे, उनको वेल्थ की, किसी भी पैसे की या फेम की कमी नहीं थी. वो एज अ राइटर, एज अ प्ले आर्टिस्ट फेमस थे, उनके पास अर्निंग भी अच्छी खासी हो गई थी, वेल्थ भी था, लैंड और हाउस भी बाय कर चुके थे वो. सो ही लेड हिज लाइफ कंटेंटेड, हर तरीके से सेटिस्फाइड थे, खुश थे अपनी लाइफ में. Well-to-do English gentleman, now and again sending a play up to London to be acted, and he sent plays, अपनी writing work वो play की तरह लंदन हमेशा भेजते रहते थे. And he was a well-known English gentleman and known always amongst his friends as a gentle, kindly, cheerful, honest man. So these all are the qualities he had according to his friends. Shakespeare died when he was 53 years old. He is buried in the parish church at Stratford with a flat stone above him on which are carved the words. और 53 year की age में he died and buried in a church at Stratford. Stratford की church में उनको bury कर दिया गया. And there was a stone on its top, उनके स्टोन जो उसके टॉप पे लगा था उनकी सिमेट्री के ऊपर, समथिंग वॉज कार्व्ड, उसके ऊपर कुछ कार्व्ड था, कुछ लिखा हुआ था स्टोन पे. गुड फ्रेंड फॉर जीसस सेक forbear to dig the dust enclosed here. So क्या कह रहे हैं वो इन लाइन्स में? These are the lines according to which we can say, good friends of Jesus, for God's sake forbid, don't come near the grave. क्या लिखा है कि जो भी अच्छे लोग हैं, जो गॉड जीसस के भक्त हैं, वो बिल्कुल भी इस ग्रेव के पास नहीं आएंगे. स्टे अवे फ्रॉम हिज ग्रेव एंड डू नॉट डिग द एनक्लोज्ड हियर. जो यहाँ डेड बॉडी बरीड है उसको बिल्कुल भी डिग आउट नहीं करें, उसको बाहर निकालें नहीं, उसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना करें. Blessed he be that spares these stones, and the person who doesn't tamper this grave shall be blessed. और जो भी इस ग्रेव को टच नहीं करेगा, डिस्टर्ब नहीं करेगा, that person will be blessed by God, and cursed be he that moves my bones. और जो भी इसको डिस्टर्ब करेगा, इस ग्रेवयार्ड को, इनके, वो that shall be cursed, उनको क्या लगेगा? उसको श्राप लगेगा. So over the tomb there is a bust of Shakespeare placed long after his death. It is said to be a good likeness of the great writer. So over the tomb there was a
बस्ट ऑफ शेक्सपियर, शेक्सपियर का एक सुंदर सा स्टैचू भी उसके ऊपर लगा हुआ था। जस्ट इट वॉज प्लेस्ड आफ्टर हिज डेथ, उनकी डेथ के बाद उनके टूम पे एक स्टैचू उनका सुंदर सा लगा दिया गया। एंड इट इज सेड टू बी अ गुड लाइकनेस ऑफ द ग्रेट राइटर विच ही लाइक्ड, जो कि उनको पसंद था, उनको ऐसा पसंद था कि उनके ग्रेवयार्ड के ऊपर एक उनका स्टैचू लगा दिया जाए। द हाउस वेयर शेक्सपियर इज सपोज्ड टू हैव बोर्न is in Stratford, but it is not quite certain whether this or the house next door to it was his birthplace. So it is also said कि शेक्सपियर का जहाँ बर्थ हुआ था, that house is also not known, वो भी नहीं पता, उसका भी कुछ क्लियर एविडेंस नहीं पता कि वो जो घर लोग सोच रहे हैं वहां बर्थ हुआ था या उसके बगल वाले नेक्स्ट हाउस में बर्थ हुआ था इनका। On the bank of the Avon stands the beautiful memorial theatre, which has been built in memory of him. Or when you go there, there stands a beautiful memorial theatre. उनकी मेमोरी में एक सुंदर सा थिएटर भी वहां पे बना हुआ है। On the bank of Avon. So Avon is the name of the river. Here, each April, well-known actors gather to perform his plays. और हर साल वहां पे अप्रैल के मंथ में एक्टर्स गैदर होते हैं, इकट्ठा होते हैं, एंड दे परफॉर्म हिज प्लेज, जो प्लेज शेक्सपियर ने लिखे हैं उसको परफॉर्म करने के लिए। द चर्च वेयर शेक्सपियर लाइज बरीड, हिज बर्थ प्लेस एंड द मेमोरियल थिएटर आर विजिटेड बाय हंड्रेड्स ऑफ पीपल फ्रॉम एवरी कंट्री इन द वर्ल्ड। एंड द प्लेस, द चर्च वेयर शेक्सपियर लाइज बरीड, जो भी वहां पे चर्च में जहाँ पे शेक्सपियर बरीड है, जो उनकी बर्थ प्लेस है, एंड द मेमोरियल थिएटर, इन सब चीजों को देखने के लिए वहां पे हंड्रेड्स ऑफ पीपल, ढेर सारे लोग हर कंट्री से गैदर होते हैं फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस इन द वर्ल्ड। इन सच अ वे इज द नेम ऑफ दिस मैन परहैप्स द ग्रेटेस्ट ऑफ इंग्लैंड्स सन, ऑनर्ड एंड बिलवेड। और ये इनका नाम कौन नहीं जानता। दिस पर्सन इज सो मच फेमस फॉर हिज लिटरेचर वर्क. He has been a well-renowned writer, theatre plays he used to write, and he is honored. He is known, he is the greatest England's son. बहुत ही फेमस हैं ये और हर कोई इनके बारे में जानता ही है। इनके प्लेस स्कूल्स में भी स्टडी आप पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्लासेस में। His memory, like his works, will never die because he was, as has been truly said, not for an age but for all time. So this person is truly said about him. बिल्कुल सच ही इनके बारे में कहा गया है कि this person is not for an age but for all time. इनकी डेथ हुए इतना टाइम हो गया, and he was a writer of 16th century. So it is such an old thing. इतने पुराने टाइम से अभी तक he is such a renowned person. इनके प्लेज, इनके राइटिंग वर्क इतना ज़्यादा फेमस है कि still we study about him. इनके प्लेज स्कूल में पढ़ाए जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा renowned person है। इनका नेम एंड फेम हमेशा आगे चलता रहेगा। So here we come to the end of this story, this chapter. This was written by Dorothy King. Thank you for watching.